الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی ظالم نے گالی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو بھیج کر اس کا سر تن سے جدا کرایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پر جس بندے نے آپ کے بدن کو تکلیف پہنچائی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا، لیکن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں تکلیف پہنچائی کہ گالیاں دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اس توہین والے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے جو مدنی زندگی ہے اس میں تو جہاد کا حکم جاری ہو چکا تھا، آپ نے ان کے لیے سخت لاہ عمل اس انداز میں اختیار کیا کہ باقاعدہ صحابہ کرام کو بھیج کر ان ظالموں کا سر تن سے جدا کیا کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو گالی دینے والا یہ ہوتا کون ہے۔ میں علماء کرام سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ امت کو جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات سنانا ضروری ہیں جن واقعات میں محبوب پیغمبر نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، وہاں امت کو وہ واقعات سنانا بھی ضروری ہے جن واقعات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو دن کے تارے دکھائے ہیں۔ میں مولویان کرام کی اس بے حسی پر اور اس خاموشی پر یہ بات تسلیم کر لیتا کہ شاید وہ واقعات جن واقعات میں محبوب پیغمبر نے اپنے گستاخوں کو دن کے تارے دکھائے، جن کتابوں میں وہ واقعات موجود ہیں، شاید مولوی صاحب کی اس کتاب پر نظر نہیں گئی ہوگی، لیکن یہ میں تب تسلیم کرتا اگر وہ کتاب غیر معروف ہوتی، اگر قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مشہور اور صحیح ترین کتاب بخاری شریف میں ایسے واقعات موجود ہوں کہ محبوب پیغمبر نے اپنے گستاخوں کا سر تن سے جدا کیا ہے، تو پھر مولوی مجرم ہوگا کہ وہ بخاری شریف کی ان حدیثوں کو عوام کے سامنے کیوں نہیں لاتا۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنے گستاخ کو دن کے تارے دکھائے ہیں، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، محبوب مسجد نبی میں جلوہ فروز ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا ہے، صحابہ کرام سے فرمایا ابو رافع مرعون یہودی نے میری ذات کو گالیاں دی ہیں، تم نے سے کون ہے جو ابو رافع کا سر تن سے جدا کر دے؟ حضرت عبداللہ بن ابو عتیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، محبوب اس کا سر تن سے جدا میں کروں گا، پیغمبر نے اجازت دی ہے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دے کر مسجد نبی میں اس کے قتل کا حکم دے کر اپنے جانسار صحابی عبداللہ بن ابو عتیق کو بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو عتیق رضی اللہ عنہ نے دن کے وقت سارا نظارہ دیکھا کہ وہ محل جہاں ابو رافع یہودی رہتا ہے اس جگہ پہ اس کو پکڑنا اور پھر اسے قتل کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ سارا دن انہوں نے ریکی کی ہے، وہاں جا کر کے نظام کو دیکھا ہے۔ جب شام کا وقت ہوا پیغمبر کا یہ جانسار صحابی بالکل اسی طرح کا لباس پہن لیتا ہے جس طرح کے لباس ابو رافع یہودی کے گن مینوں کا ہے، جس طرح کا لباس ابو رافع یہودی کے گن مینوں نے پہنا ہوا ہے، پیغمبر کے جانسار صحابی نے اسی طرح کا لباس پہن لیا ہے۔ جب اس طرح کا لباس پہن لیا، بالکل شام کا وقت ہے، اس کے گیٹ کے سامنے اس انداز میں بیٹھ گئے جس طرح کوئی بندہ رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، بول براز کے لیے بیٹھتا ہے، چاروں طرف چادر لی ہوئی ہے، لباس گن مینوں جیسا پہنا ہے، پیغمبر کا صحابی بیٹھا ہے۔ جب وہ گن مین گیٹ والا دروازہ بند کرنے لگا، اس نے گیٹ کو بند کرنے کے دوران اس پر نظر پڑی ہے، پیغمبر کے صحابی سے کہا ارے تم، پیغمبر کے صحابی کو وہ اپنا بندہ سمجھ کے کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم وہاں پہ بیٹھے ہو، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں، کیا تم نے اندر نہیں آنا؟ کہا کیوں نہیں آنا؟ فوراً دوڑ کے اندر داخل ہوئے ہیں، وہ سمجھا کہ بندہ اپنا ہے لیکن یہ پیغمبر کا صحابی ہے۔ اندر داخل ہوا، ابو رافع یہودی کا محل اس انداز میں تھا، اس کا محل اس ترتیب سے تھا، درمیان میں اس کا کمرہ ہے، اس کے دائیں طرف ایک کمرہ، پھر آگے اور دوسرا کمرہ، درمیان میں راستے بنے، دروازے بنے ہوئے ہیں، بائیں طرف بھی اسی طرح، آگے کی طرف اور پیچھے کی طرف بھی اسی طرح، درمیان میں اس ملعون کا کمرہ تھا۔ پیغمبر کا صحابی پہلے کمرے میں داخل
کمرے میں داخل ہوا جہاں یہ ملعون سویا ہوا تھا، اندھیرا ہے، اندر نظر کچھ نہیں آتا۔ پیغمبر کے صحابی نے بلند آواز سے پکارا ہے ابو رافع۔ جب وہ اس نے یہ جملہ کہا، ابو رافع سونے کی تیاری میں تھا، نیم بے ہوشی، نیم نیند اور نیم بیداری میں تھا۔ اس نے فوراً اوہ کی آواز نکالی ہے۔ پیغمبر کے صحابی نے این اس جگہ پہ وار کیا ہے جہاں سے اوہ کی آواز آئی تھی، اس پہ جب وار کیا بدن پہ خون کے چھینٹے اور فوارہ آیا ہے۔ پیغمبر کے صحابی سمجھ گیا میرا وار سیدھے نشانے پہ لگا ہے۔ فوراً ترتیب اختیار کرتے ہوئے پیغمبر کا صحابی باہر نکلا ہے، کنڈی کھول کے باہر آئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اندر دوڑ کے گئے ہیں۔ کہا یہ آواز کیسی؟ ابو رافع یہودی نے فوراً کہا کہ تیری ماں مرے۔ وہ یہ سمجھا کہ پہلا بندہ مجھے قتل کرنے آیا تھا یہ میرے گن مینوں میں سے ہے۔ فوراً اس نے کہا تیری ماں مرے، مجھے کوئی قتل کرنے آیا تھا اور تو نے خیال تک نہ کیا۔ جب اس نے اتنا جملہ کہا پیغمبر کے صحابی کے لیے بالکل آسانی ہو گئی کہ یہ ملعون پڑا کہاں ہے جس جگہ پہ سویا تھا۔ پیغمبر کے صحابی نے کئی ایک بار کر کے واصلِ جہنم کیا ہے، فوراً باہر نکلے ہیں۔ جب باہر آئے دیوار پہ چڑھے ہیں، دیوار پہ چڑھ کے باہر کی طرف چھلانگ لگائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے پیغمبر کا صحابی جب زمین پہ آیا پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے، لیکن اس ہڈی کے ٹوٹتے ہی دل میں زخم کے آنے کی وجہ سے تکلیف کا احساس نہیں ہوا، بلکہ فوراً دل میں یہ بات آئی کہیں یہ ملعون بچ نہ گیا ہو۔ میں پیغمبر سے اپنے محبوب سے وعدہ کر کے آیا ہوں اس ملعون کو واصلِ جہنم کروں گا، کہیں یہ ملعون بچ نہ گیا ہو۔ پیغمبر کا صحابی اس انتظار میں کہ تو پتہ تو چلے، ساری رات ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ دیوار کے اوپر بیٹھ کے گزار دی ہے۔ ساری رات سردی میں اس دیوار پہ بیٹھے رہے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوا ہے فصیل نے ندا اور آواز لگائی ابو رافع یہودی ہمارے سردار کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ پیغمبر کے صحابی دیوار کی دوسری طرف چھلانگ لگاتے ہیں۔ محبوب پیغمبر مسجد نبوی میں آئے صبح کی نماز کے لیے۔ پیغمبر کا صحابی حضرت عبداللہ بن ابو عتیق رضی اللہ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کی ہے۔ محبوب دیکھتے ہی مسکرا دیے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے صحابی سے کہا اللہ رب العزت نے تیرے اوپر جنت کو واجب فرما دیا ہے کیونکہ تو نے گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے، تو نے گستاخ رسول کو واصلِ جہنم کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے خوشخبری سنا دی ہے۔ صبح سویرے یہودی آئے، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے ہم باقاعدہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہماری جان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ نے یہ ذمہ لیا ہے۔ آج رات کو ہمارے سردار ابو رافع کو کسی نے قتل کر دیا ہے، قاتلوں کو پکڑیے اور سزا دیجیے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سنی ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ کہا کسی قاتل نے قتل کیا ہے، بڑے دردناک انداز سے اس کے بدن پہ کئی ایک تلوار کے نشان ہیں، ہمارے بچے پریشان ہیں، ہماری عورتیں خوفزدہ ہیں، ہمارے قاتل کو پکڑیے۔ محبوب پیغمبر نے فوراً کہا تمہارا قاتل پکڑنا تو دور کی بات، یاد رکھو اگر یہودی ہو تم امن اور اطمینان سے رہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ جو کچھ ابو رافع نے کیا ہے بخاری شریف کے الفاظ ہیں، کہا کہ جو کچھ ابو رافع یہودی نے کیا ہے اگر تم میں سے کسی نے یہی عمل کیا تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو دن کے تارے دکھائے ہیں، امت کو یہ شیشہ دکھلانا ضروری ہے۔ محبوب نے اپنے اخلاق دکھائے ہیں، میرے پیغمبر کا تلوار اٹھانا بھی اخلاق ہے۔ میرے محبوب وہ ہیں جن کا کوئی عمل اخلاق کے دائرے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ آج کا ملا غلط گمراہ کرتا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے؟ اگر یہ بات مان لی جائے تو معنی یہ ہوگا تلوار اٹھانا اخلاق سے الگ چیزیں ہیں، اخلاق الگ ہے، تلوار الگ ہے۔ میرے پیغمبر نے اگر دشمنان اسلام کی گردن تن سے جدا کرائی ہے یہ میرے محبوب کے اخلاق ہیں۔ اگر کسی کو پیار دیا ہے یہ بھی اخلاق ہیں، دشمن کو معاف کیا ہے یہ بھی اخلاق ہیں، گستاخ کو قتل کرایا ہے تو یہ بھی نبی کے اخلاق ہیں۔ میرے محبوب کا کوئی عمل اخلاق کے دائرے سے خالی ہے ہی نہیں۔ یہ غلط پھٹی پڑ
पढ़ाई गई है कि पैगंबर इखलाक के साथ इस्लाम को फैलाने के लिए आए थे। पैगंबर ने 27 गज़वात में शिरकत करके अखलाक का नमूना दिया है, उम्मत को सबक दिया है कि अखलाक के गलत माने न करना, अखलाक का सही माना करना। मेरे महबूब ने जो भी किया वो अखलाक के दायरे में था। महबूब की सीरत इस बात की गवाही देती है, जिसने दीन इस्लाम के खिलाफ साजिशें की है मेरे पैगंबर ने उन्हें माफ किया है। जो पैगंबर के खिलाफ लड़ने के लिए आया है मेरे पैगंबर ने उन्हें माफ किया है। जिसने पैगंबर के बदन को तकलीफ पहुंचाई है मेरे पैगंबर ने उन्हें माफ किया है। लेकिन जिसने पैगंबर की गुस्ताखी की कभी भी महबूब ने उसे माफ नहीं किया है। मदनी जिंदगी इस बात की गवाही देती है, पैगंबर ने चुन चुन के कत्ल कराया है। गज़वा बदर के मौके पे 70 कैदी बंदे बन करके आए, मुशरिकीन मक्का में से 70 बंदे गिरफ्तार हुए। पैगंबर से सल्लम ने सहाबे कराम से मशवरा किया है, सहाबे कराम की मीटिंग बुलाई है, इनके बारे में क्या फैसला हो। महबूब पैगंबर ने सहाबा के मशवरे से बदर के कैदियों को छोड़ा है। जब बदर के कैदियों को छोड़ा जा रहा था, मौलवी के लिए यह बात जरूरी है कि कौम को यह भी बतलाए, जब सब तमाम लोगों को मुशरिकीन को छोड़ा जा रहा था उस वक्त महबूब पैगंबर ने फरमाया था ऐसे इस मजलिस में जितने अफराद मौजूद हैं जिनको छोड़ा जा रहा है उनमें से 2 बंदों को अलग करो। पैगंबर ने ऐलान किया उकबा बिन मुईत को अलग करो। पैगंबर ने ऐलान किया नजर बिन हारिस को अलग करो और इनको अलग करके तलवार लाओ, इनके सर्तन से जुदा कर दो। पैगंबर से सल्लम के जानसार सहाबा ने पूछा है या रसूलल्लाह गलती तो सबकी एक है, इन्होंने भी हमारे खिलाफ लड़ने का ऐलान किया था, जिनको छोड़ा जा रहा है वो भी लड़ने के लिए आए थे। अगर छोड़ना है तो सबको छोड़ दिया जाए, अगर सजा देनी है तो सबको सजा दी जाए। ये क्या मामला कि सबको छोड़ा जा रहा है। उकबा बिन अबी मुईत और नजर बिन हारिस को कत्ल किया जा रहा है। महबूब पैगंबर ने ऐलान किया, महबूब पैगंबर ने एक सबक और दर्स दिया जो तेरे और मेरे लिए बेहतरीन नमूना है कि मैं और आप भी इसी रास्ते पर चले। महबूब पैगंबर ने फरमाया बाकी मेरे खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। उकबा बिन अबी मुईत मक्का में मुझे गालियां दिया करता था, ये गुस्ताखे रसूल है, इसका सर्तन से जुदा किया जाएगा। नजर बिन हारिस मक्का में मुझे गालियां दिया करता था, इसका सर्तन से जुदा किया जाएगा। महबूब पैगंबर ने अपने गुस्ताखों को दिन के तारे दिखाए हैं, इन दोनों के सर्तन से जुदा करके उम्मत को यह सबक और दर्स दे दिया गुस्ताखे रसूल की एक सजा होगी कि उसके सर को तन से जुदा किया जाए। महबूब पैगंबर की सारी सीरत उम्मत के सामने लाना जरूरी है। महबूब ने अपने गुस्ताखों को दिन के तारे दिखाए हैं। महबूब की ये सीरत कौम के सामने, महबूब का ये किरदार कौम के सामने लाना जरूरी है। महबूब के इस किरदार को कौम के सामने पेश करना जरूरी है। मेरे पैगंबर फतेह मक्का के मौके पे मक्का मुकरमा में दाखिल हुए हैं, दाखिल होते ही ऐलान किया है आज के दिन किसी पे ज्यादती नहीं होगी, मैं सबकी माफी का ऐलान करता हूं। जब महबूब पैगंबर ने सबकी माफी का ऐलान किया है, 15 बंदों के बारे में फरमाया ये जहां मिले इन्हें कत्ल करो। महबूब वजह क्या है? पैगंबर ने फरमाया ये मेरे गुस्ताखे हैं, गुस्ताखे रसूल को धरती पे जिंदा रहने की इजाजत नहीं है। खतरा इस बात का था कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी की वजह से मजमूई कौम पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। इस वजह से महबूब पैगंबर ने गुस्ताखाने रसूल को दिन के तारे दिखाए हैं। हजरत सईद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ते हुए मक्का मुकरमा में आए हैं। देखा वहां अब्दुल्ला बिन खतल पैगंबर का गुस्ताख मौजूद है जो पैगंबर के खिलाफ अशार लिखता था। देखा कि बैतुल्लाह के गिलाफ के अंदर छुपा हुआ है। पैगंबर के सहाबा इस मंजर को देख के वापस गए हैं। महबूब पैगंबर को जाकर अर्ज की है या रसूलुल्लाह अब्दुल्ला बिन खतल जो आपका गुस्ताख है, आपके खिलाफ अशार लिखता था, वो मलून खाना काबा के गिलाफ में छुपा हुआ है। एक तरफ बैतुल्लाह की दीवार है, दूसरी तरफ बैतुल्लाह का गिलाफ है, दरमियान में छुपा है, उसका क्या किया जाए? महबूब पैगंबर ने ऐलान किया फरमाया इसको वहीं पे कत्ल करो। पैगंबर के दोनों सहाबी दौड़ के बैतुल्लाह में दाखिल हुए हैं। मरदूद अब्दुल्ला बिन खतल ने पैगंबर के सहाबा की जब चेहरे का मुताला किया समझ गया कि अब मुझे छोड़ेंगे नहीं, वहां से भागा है। अम्मार बिन यासिर बूढ़े थे, मुहद्दिसीन ने लिखा है इस वजह से पीछे रह गए। सईद बिन हारिस दौड़ के गए हैं मक्का के बाजार में शरेआम सर्तन से जुदा करके उम्मत को सबक दिया है गुस्ताखे रसूल की यही सजा है कि उसका सर्तन से जुदा किया जाएगा।
महबूब पैगंबर की सीरत मेरे और आपके लिए बेहतरीन नमूना है। शायद किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो, महबूब पैगंबर ने अपने गुस्ताखों में से मर्दों को तो सजा दी है, औरतों को सजा किस तरह दिया जाए, औरत को किस तरह कत्ल किया जाए, क्या पैगंबर की सीरत इस बारे में भी कुछ कहती है? इसी अब्दुल्ला बिन कत्ल की दो बांदियां थी, दो लोडियां थी जो गाना गाया करती थी। एक का नाम करीबा था, दूसरी का नाम अरनबा था। ये दोनों मलऊना, ये अब्दुल्ला बिन कत्ल अशार लिखता था, ये अशार गाया करती थी, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती, इनके अशार चला करते थे। ये गाने के अंदाज में महबूब पैगंबर की गुस्ताखियां किया करती थी। पैगंबर ने इन दोनों के लिए भी हुक्म जारी किया है। पैगंबर के जानसार सहाबा ने घर घुस करके इन दोनों को वास्ते जहन्नम कर दिया। मेरे पैगंबर की सीरत बिल्कुल वाज़े है, बिल्कुल साफ सुथरा सबक और दर्स दे रही है कि गुस्ताख रसूल को जिंदा रहने का हक नहीं है, गुस्ताख रसूल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। कुछ नहीं होता। मौलवी गिरफ्तार होंगे, आप इंशाल्लाह नहीं होंगे। ऊंची आवाज से गुस्ताख रसूल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। बुलंद आवाज से गुस्ताख रसूल को जिंदा रहने का नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। महबूब पैगंबर ने अपने गुस्ताखों को दिन के तारे दिखाए हैं। पैगंबर ने ऐलान फरमाया, हबेरस बिन नकीद ने मुझे गालियां दी हैं, कौन कत्ल करेगा? अली उठे हैं, घर घुस के उसे कत्ल किया है। महबूब पैगंबर ने ऐलान किया, तलतला बिन हारिस ने मेरी जात को गालियां दी हैं, कौन उसे कत्ल करेगा? हजरत अली उठे हैं, उसको दिन के तारे दिखाए हैं। महबूब पैगंबर ने ऐलान फरमाया, फला कबीले की एक औरत है जो हर वक्त मेरे खिलाफ जबान इस्तेमाल करती रहती है, उसकी एजा से मुझे कौन बचाएगा? हज खालिद बिन वलीद उठे हैं, घर जाके उसे वास्ले जहन्नम किया है। बल्कि पैगंबर के सहाबा की जिंदगियां बेहतरीन नमूना है। हज खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने एक यहूदी ने पैगंबर का नाम लिया है, नाम नहीं बल्कि इस अंदाज में कहा कि तुम्हारे साहिब यूं कहते हैं। खालिद बिन वलीद ने सुना है, खून खोल उठा, तलवार नियाम से बाहर निकाली है, सर तन से जुदा कर दिया है। पैगंबर को सहाबा ने शिकायत लगाई, या रसूलल्लाह तुम्हारे साहिब कहने में कौन सी गुस्ताखी है? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसे बंदे को कत्ल किया है जिसने आपको तुम्हारे साहिब कहा था, इसमें गुस्ताखी तो नहीं है। पैगंबर ने खालिद को बुलवाया है, कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे साहिब कहने में गलती कौन सी है, खराबी कौन सी है, गुस्ताखी कौन सी है कि तुमने उसे कत्ल कर दिया है? खालिद बिन वलीद का जवाब सुनो, अपने गिरबान में झांक के अपनी जिम्मेदारियों का एहसास सुनो। पैगंबर से सल्लम के साहबी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने गैरत ईमानी में डूब के कहा, महबूब जब उस लानती ने आपके बारे में कहा तुम्हारा साहिब उसकी पेशानी पे बल थे, उसने आपका नाम हकारत के साथ लिया था, जो आपका नाम हकारत के साथ ले मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। महबूब पैगंबर मुस्कुरा दिए हैं, फरमाया खालिद तूने बिल्कुल सही किया। जो मेरे नबी का नाम तहकीरन ले वो भी गुस्ताखे रसूल है, उसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है कि इस मलूना ने कहा क्या था, अवाम में लाना ही नहीं चाहिए। उसके जो अल्फाज हैं, अल जमीयत रिसाला खरीदिए, उसके अंदर उसके अल्फाज बाकायदा लिखे हुए हैं, आप वो अल्फाज पढ़िए और गैरत ईमानी में डूबकर शायद आपको जिंदा रहने का भी दिल ना करे। रब्बे काबा की कसम, मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, इन हालात के बाद कुछ ऐसी कैफियत बनी, शायद मैं मौलवी ना होता तो खुदकशी ही कर लेता कि पैगंबर से सल्लम की गुस्ताखी के बाद हमारा जिंदा रहने का माना क्या बनता है? हमें तो जिंदा रहने का हक ही नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक जब पैगंबर की गुस्ताखी हो कौम जिंदा रहे, कौम को जिंदा रहने का हक ही हासिल नहीं है। पैगंबर ने अपने गुस्ताखों को दिन के तारे दिखाए हैं। नबी करीम से सल्लम की ये जिंदगी कौम के सामने लाना जरूरी है। बड़ी मुद्दत हो चुकी पैगंबर की इस तरह के वाकयात कौम को सुनाकर अखलाक के नाम पे बेगैरत बनाने की जरूरत नहीं है। महबूब पैगंबर ने अपने गुस्ताखों को दिन के तारे दिखाए, कौम के सामने ये बात लाना जरूरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबी में आए हैं, महबूब पैगंबर से सल्लम जलवा फरोज हैं, पैगंबर के चेहरे पे परेशानी के आसार नजर आए। पैगंबर से सल्लम से जानसार अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा,
पूछा है महबूब आप इतने परेशान क्यों हैं? इमामुल अंबिया सल्लम ने फरमाया अली मैं परेशान क्यों ना हो, मेरी जात पर एक बंदा झूठ बोल रहा है। अली ने पूछा है महबूब पैगंबर ने फरमाया यमन में जदई नामी एक मलऊन ने मेरी जात पर झूठ बोला है, उसे किसी औरत के साथ इसका ताल्लुक हो गया था, जाहिरी तौर पे कलमा को मुसलमान कहलाता था। उन लोगों से जाकर के कहा जिनकी वो बच्ची थी मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है, अपनी बच्ची का निकाह मुझे दे दो, जबकि पैगंबर ने कहा नहीं था। वालिदैन ने फौरन कहा अगर इमामुल अंबिया ने कहा है हमें हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, लेकिन तस्दीक करके निकाह देंगे। महबूब पैगंबर से सल्लम के बाद उस कबीले ने अपने दो बंदे भेजे हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु से महबूब पैगंबर ने फरमाया इन दोनों से पूछो, उस जालिम ने मेरा नाम इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की है। महबूब पैगंबर ने इस मौके पर वो मशहूर हदीस जिक्र फरमाई थी जो मेरी जात पर झूठ बोलता है उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया है। ये मशहूर हदीस है, पैगंबर ने इस मौके पर फरमाया था। पैगंबर से सल्लम से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब सारी बात समाप्त कर ली, महबूब पैगंबर हुक्म क्या है? इमामुल अंबिया ने फरमाया जाओ यमन में जदई को वासले जहन्नम करो, अगर वो मर चुका हो जहां उसकी लाश दफन हुई हो उसकी लाश को बाहर निकालना, बाहर निकाल के जला डालना। ऐसे गुस्ताख को जिंदा रहने का हक भी नहीं है, ऐसे गुस्ताख को मट्टी में दफन होने का हक भी नहीं है, इसको जलाया जाएगा। महबूब पैगंबर ने जानसार सहाबी हज़रत अली मुर्तजा को भेजा है। दो रवायतें आगे मिलती हैं। हज़रत अली यमन में पहुंचे हैं। एक रवायत ये है जब अली यमन में पहुंचे देखा कि जंगल में एक बंदे की लाश मिली है, पूछा भी कौन है? कहा ये वही जदई है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, जंगल में किसी सांप ने इसको डस लिया है और ये मर गया है। और एक रवायत में ये अल्फाज हैं महबूब पैगंबर का ये गुस्ताख जंगल में गया, किसी जंगली दरिंदे ने इसके पेट को चीर फाड़ के परे फेंक दिया था। महबूब पैगंबर के गुस्ताख को जानवर भी सजा देता है। उतबा उतैबा और शैबा का वाकया इस पर बेहतरीन मिसालें हैं। महबूब पैगंबर का गुस्ताख मासले जहन्नम हो चुका है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया तुम इसे दफन क्यों नहीं करते? लोगों ने कहा जमीन में फेंकते हैं, जमीन बाहर फेंक देती है, जमीन कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत अली ने आग जलाई है, इस गुस्ताख को उस आग के अंदर डाला है। इस बुनियाद पे कहता हूं गुस्ताख रसूल को जिंदा रहने का हक हासिल ही नहीं है। बेशक गुस्ताख रसूल जिंदा रह ही नहीं सकता। क्यों? इस वजह से कि ये सारी दुनिया किसके लिए बनाई गई? महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हमें ये सारा जहान मिला महबूब के सदके, मेरी और आपकी ये जान हमें मिली महबूब के सदके। जो कुत्ता उसी को भौंके उसको जिंदा रहने का क्या हक हासिल होगा? वो उसकी धरती पर क्यों रहे जो धरती उस परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के लिए बनाई? महबूब की गुस्ताखी करके क्यों कोई जिंदा रहे? महबूब पैगंबर के गुस्ताखों को सजा देने से ये अजीब माहौल है। कहते हैं अगर सजा दे दी गई मुल्क का अमन तबाह हो जाएगा, हदीस के बिल्कुल खिलाफ। महबूब पैगंबर से सल्लम की हदीस मुबारका इस बात की गवाही देती है कि गुस्ताख रसूल को सजा देने से मुल्क में अमन होता है, बदअमनी नहीं। मैं इस पर भी बाकायदा दलाल लगता हूं। अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल में इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसके तहत दो अहदीस मुबारका जिक्र की है कि गुस्ताख रसूल को सजा देने से दुनिया में अमन पैदा होता है। गलत सोच यहूद और नसारा के पिट्ठियों की कि गुस्ताख रसूल को अगर सजा दी जाए मुल्क में अमन की सूरत खत्म हो जाएगी। हालांकि गुस्ताख को सजा देने से मुल्क के अंदर अमन पैदा होगा, यह बाकायदा अहदीस से साबित है। महबूब पैगंबर से सल्लम की मदीना मुनव्वरा की एक औरत से गुस्ताखी की है। मेरे महबूब ग़ज़वे बदर में लड़ने को गए हैं। हजरत उमैर बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये जुमला सुना कि फला औरत ने मेरे महबूब को गाली दी है, इंतजार में ठहर गए जब मेरा महबूब वापस आएगा इसके कत्ल की खुशखबरी मैं अपने महबूब को सुनाऊंगा। मेरे पैगंबर की आदत थी जब पैगंबर मदीना मुनव्वरा में वापस आते किसी गज़वे से तो वापस आने के साथ मदीना मुनव्वरा के करीब पड़ाव डाल लेते थे। महबूब ने वहां पे पड़ाव डाला है। पड़ाव डालने के बाद महबूब
ने इत्तला भेजी है कि हम यहाँ पे आ गए हैं। सुबह की नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा के लोग इस्तकबाल के लिए आए। ग़ज़वे बदर में हमें कामयाबी जो हुई है, महबूब ने पैगाम भेज दिया है। उमैर बिन अद्दी को वादा याद आया जो उन्होंने नीयत की थी, रात को खंजर लिया है, घर से बाहर निकले हैं, उस मलऊना के दरवाजे पर पहुंचे हैं, घर के अंदर घुसे, उस मलऊना की बांदी ने कोई जुमला कहा, हजरत उमैर बिन अद्दी ने उसकी बांदी के जुमले की कॉपी की है, फिर अंदर दाखिल हुए। वो मलूना जो गुस्ताखा थी, महबूब पैगंबर से सल्लम की, वो सोने के लिए जमीन सोने के लिए अपनी चारपाई पे लेटी है, उसने बच्चे को पिस्तान के साथ लगाया है, दूध पिलाने के लिए महबूब पैगंबर का जानिसार दाखिल हुआ, उसने उस बच्चे को पकड़ा है, साइड पर हटाने के लिए वो औरत बोली, तुम कौन हो, मेरा बच्चा मुझसे छीन रहे हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? इनने फौरन बांदी की आवाज बना के कहा, मैं कोई गैर नहीं हूं, तेरी लौंडी और तेरी बांदी हूं, बच्चा सो गया है, अलग बिस्तर पे सुलाने लगी हूं। फौरन खामोश हो गई। इन्होंने बच्चे को उठाया है, एक तरफ सुलाया है, खंजर के साथ सीने पे वार किया है, इस मलूना को वासले जहन्नम किया। महबूब पैगंबर सुबह के वक्त दाखिल हुए हैं मदीना मुनव्वरा में। हज़रत उमैर बिन अद्दी इस्तकबाल के लिए आए हैं, पैगंबर की आंखों से आंखें मिलाई, महबूब पैगंबर देखते ही मुस्कुरा दिए हैं। फरमाया, उमैर बिन अद्दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे ऊपर जन्नत को वाजिब फरमा दिया है। और पैगंबर ने एक जुमला इरशाद फरमाया जो मैं इस मौके की मुनासबत से अर्ज करना चाहता हूं। महबूब पैगंबर से सल्लम ने फरमाया, उमैर बिन अद्दी, जो काम तूने रात किया है, इस काम की बरकत तेरे पूरे खानदान में चलेगी। दो बंदों का आपस में लड़ना तो दूर की बातें हैं, तेरे खानदान की दो बकरियां भी कभी आपस में नहीं लड़ेंगी। इतना अमन पैदा होगा तेरे खानदान में, तेरे खानदान की दो बकरियां भी कभी नहीं लड़ेंगी। महबूब पैगंबर ने ये जुमला फरमा के उम्मत को सबक दिया है, गुस्ताखे रसूल को सजा देने से दुनिया में अमन पैदा होता है, ना के नुक्से अमन। आखिरी बात, महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु जलवा फरोज है, महबूब पैगंबर से अर्ज की, या रसूलल्लाह, फला आदमी आपकी फला आदमी बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है। महबूब पैगंबर ने फरमाया, अगर वो इतना नेक मुत्तकी और परहेजगार है, पैगंबर से सल्लम ने फरमाया, फिर मैं उसे क्यों नहीं जानता। पैगंबर ने जब जुमला कहा, पैगंबर के सहाबी निकले हैं घर से बाहर, पैगंबर से सल्लम के साथ चल रहे हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक बंदा दौड़ के आया है, उसने महबूब से मुसाफा किया है। जब मुसाफा किया इमामुल अंबिया से सल्लम से, सहाबा कराम ने फौरन कहा है, या रसूलल्लाह, जिसके बारे में हम कहा करते थे बड़ा नेक है, ये वही नौजवान है। इमामुल अंबिया से सल्लम ने जब ये जुमला सुना, हैरत के अंदाज में सहाबा कराम को देखा है, कहा, तुम मुझे इतना नेक समझ रहे हो, जबकि मुझे तो इसके चेहरे पर शैतान के खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। पैगंबर ने जुमला कहा है, एक घर के अंदर तशरीफ ले गए हैं। महबूब पैगंबर ने सहाबा कराम से फरमाया, तुम में से कौन इस्लामती को कत्ल करेगा। सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए हैं, मस्जिद नबी में देखा ये मलऊन नमाज पढ़ रहा था। सिद्दीक़ अकबर वापस लौट गए, या रसूलल्लाह नमाज में है। महबूब पैगंबर ने फरमाया, ये गुस्ताख है, इसको नमाज की हालत में कत्ल करो। महबूब पैगंबर के जान साथ हज़रत फारूक आज़म निकले हैं। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहां जाकर के देखा ये सज्जे की हालत में है, सज्जे की कैफियत में किसी को कत्ल करो। फारूक आज़म भी दहल गए, वापस आए। महबूब पैगंबर वो तो सज्जे की हालत में है, पैगंबर का चेहरा गजबनाक हो गया। महबूब पैगंबर ने फरमाया, ये गुस्ताख जिस हालत में नजर आए उसी हालत में से कत्ल करो। फरमाया सहाबे करम ने, या रसूलल्लाह, जुर्म क्या है। महबूब पैगंबर ने फरमाया, जब वो मुझे मुसाफा कर रहा था उसके दिल के अंदर ये बात थी कि मैं बहुत बड़ा नेक हूं, मैं तो इमामुल अंबिया से भी बड़ा नेक हूं। इसको कहते हैं इशारतन किनायतन उसने पैगंबर की गुस्ताखी की है। महबूब पैगंबर से सल्लम ने जब ये सहाबा से जुमला कहा, हज़रत अली उठे हैं, या रसूलल्लाह, जिस हालत में होगा मैं उसी हालत में कत्ल करूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ के गए हैं। ये मलून नमाज पढ़ के मस्जिद नबी से दफे हो चुका था। महबूब पैगंबर ने उस वक्त इरशाद फरमाया, अली, अगर तू इसे कत्ल कर देता, क़यामत तक उम्मत के अंदर कभी भी किसी किस्म के दंगे, लड़ाई और फसादात न होते। मैं इस बुनियाद पर भी कह सकता हूं
کہ گستاخ رسول کو سزا دینے سے دنیا میں امن پیدا ہوتا ہے، نقص امن پیدا نہیں ہوتا۔ غلط پھٹی پڑھائی ہے جنہوں نے یہ پھٹی پڑھائی کہ گستاخ رسول کو چھوڑنے سے امن پیدا ہوگا اور گستاخ رسول کو سزا دینے سے نقص سے امن پیدا ہوگا۔ محبوب پیغمبر کی سیرت اٹھائیے، علماء کرام سے انتہائی معذرت کے ساتھ امت کے سامنے محبوب کی ساری زندگی پیش کرو تاکہ امت کسی اندھیر میں نہ رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہمارا وہ نعرہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس سب پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔